Okay. So yesterday we saw about these things. Okay. So कल हम लोगों ने इसके रिलेटेड देखा आप सबने जिन्होंने सेशन अटेंड किया था उन्होंने सेशन में देखा होगा. ओके. जिन्होंने सेशन नहीं अटेंड किया उन्होंने वीडियो में आई होप कि देख लिया होगा. ओके. बिकॉज ये जो अंडरस्टैंडिंग है दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट वन. Okay, about the SQL, about the Oracle. Okay, what is that? And then only you'll get subsequent parts. Okay, so today we are going to start with this first things. Okay, like this two we will see simultaneously. Okay, database we will see how to store the data. Along with that, we will make a use of SQL as a language to store the data and retrieve the data. Okay, so let's see like how the database is different than this Excel files. Okay, so as discussed yesterday. Okay, uh, okay, so as discussed yesterday. Okay, we saw we have to store some data. Okay, and that data was kind of a village data. Okay, so consider we are again storing the village data. Okay, where we have to store other numbers of each person. Okay, we have to store first name of each person. Okay, we have to store last name of each person. Okay, so like what we can do in the Excel, that only we will see how to do the same thing in the database. Okay, so like just how we discussed yesterday, database is a kind of similar to the Excel only. Okay, so we will just see how we can store the data in the database. Okay, which is already there in the Excel. So suppose Excel we have three four columns. Okay, we will add mobile number as well. Okay, so if we have these many columns, okay, we will have definitely few data in it. Okay, and our table name. Okay, table is nothing but we can say a file. Okay, consider we have a file, Excel file. That file's name is a village. Okay, that will come up here basically once we save this file. Okay, but as of now just consider we have a Excel file whose name is like village. We can save this as well. Okay, so let's save this. Okay, so we have saved this. Okay, with this name. Okay, that is fine. So here you can see we have a file consider with name village. Okay, and we have some data in it. Okay, so other numbers we can say like 101 102 like this we have. Okay, 103 104 105. Okay, and we have some data like we can consider Rohit. Okay, Roma we can consider, Rahul we can consider, Ajit we can consider. Okay, Sumit we can consider. Last names we can consider anything. Okay, Jadhav we can consider. Okay, More we can consider. Okay, post that we can consider anything. Okay, Akur we can consider. Okay, and something like that. Mobile numbers we can say 1 2 3 4 5 6. Okay, 7 8 9. Mobile number cannot be repeated. Okay, so okay, this data we have. Okay, now we have stored it in Excel. Okay, we know it is in the Excel. Okay, now same thing we have to do in the database. We have to see how we can do that in the database. Okay, so actually the technical thing, first technical thing we are going to start with today. Okay, so let's get started with that. Okay, so this is the SQL document, SQL syllabus document which I shared yesterday to you guys. Okay, so this document will show you the syllabus basically. Okay, what we have to learn step by step. It is mentioned in this document. Okay, so if you look at this, we are starting with SQL here. Okay,
सो एसक्यूएल का मतलब क्या है? तो जैसे हम एक्सेल में अभी हम लोगों ने एक 2 मिनट में डेटा फीड कर दिया बाय जस्ट टाइपिंग इट हियर, ओके। तो डेटाबेस में दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल to insert the data in the database. What we have to do is we have to make a use of SQL. Okay, so that's what we will see, how to make a use of SQL. Okay, तो यहाँ पे आप लोग को पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ कमांड्स दिए हैं. ओके, what these commands are? These commands are like one by one we have to make a use to fetch the data, okay, to insert the data, okay. So before insertion of the data, what we have to do is we have to first of all create the structure of the table, okay. Because if you look at this, in this structure, okay, before we have to start the data, okay, in the Excel, what we have to do, we have to open the Excel, right? Open the Excel, and I can say like we have to store the file, save the file, okay. So for here, if you look at this, our file name is a village. So similarly, this kind of file we have to store in the database as well, okay. And not only this file, but along with these columns as well, okay. So what we have to do, we have to add these columns also in Oracle, okay. So Oracle is nothing but the database, and how you will open the database. Like I shared you guys one file to install the Oracle. Okay, so I hope everyone has done that. Okay, and everyone have created the user with the password as a system. Okay, so how you can open that? You have to go here. You have to click on SQL. Okay, okay. Once you type the SQL over here, you will get it here. Okay, so this is a kind of database interface, command line interface, okay, where we can interpret with the data, we can communicate with the database, okay, by using this, okay. So once you click on this, this window will come up here, okay. Just give me a guys, okay, give me a minute, I'm coming back, okay. Okay, okay, so you can look at this, okay. This is nothing but डेटाबेस आई कैन से, ओके, ये है अपना ओरेकल डेटाबेस, यही हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, ओके। बेसिकली ये बैकएंड में हमारे कंप्यूटर पे ही स्टोर होता है, बट उसको वहां से फेच करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए हम लोग ये एज अ इंटरफेस का यूज करते हैं, ओके। तो दिस इज नथिंग बट अ कमांड लाइन इंटरफेस। मतलब यहाँ पे जो हम लोग टाइप करके डायरेक्टली करते हैं उसको बोलते हैं यूजर इंटरफेस, ओके, यूआई, यूजर इंटरफेस, डायरेक्टली हमारे आंखों को दिखता है, बट दिस इज काइंड ऑफ अ कमांड लाइन इंटरफेस, ओके। तो ये कमांड की मदद से हम लोग को क्या करना पड़ता है, डेटाबेस एक्सेस करना पड़ता है, ओके। सो हाउ विल यू लॉग इन ओवर हियर? द फर्स्ट थिंग इज you will say con is nothing but a connect, okay. It's a command to connect with the database, okay. So you will type it here, con is to connect, and then username is a system, okay, which is a by default, okay. And give one forward slash, okay, and again give the password, okay. Password abhi यहाँ पे if you look at this, this is a system which is a username, and this is a system which is a password, okay. So once you click on this, it will say you are connected, okay, means we are connected to the database now. Once you get connected over here, you have to execute few commands, okay, to unlock the HR user or HR schema.
Why is that? Because that HR schema will have few sample tables for you to work on. Apart from that, you can create your own users as well. Okay, own users as well by your name directly. How will you create that? Okay, this system is a default user, okay, and super user, okay, which has every access. Okay, so what you can do is you guys can just create your own users. How will you create? For that, there is a command which is a create user. Okay, okay, then username. Now here I will keep it as a batch and underscore, either batch 13 I will keep. Okay, batch 13. Okay, post that identified keyword is there. Okay, so this identified space by. Okay, and again I need to type a password. Okay, so if you look at this command, this is having some different commands. Create user, username, this is username. Okay, आइडेंटिफाइड बाय बैच 13. ओके, आइडेंटिफाइड बाय का मतलब क्या होता है? बैच 13 को इससे आइडेंटिफाई करो, मतलब ये बन गया है इसका पासवर्ड. ओके, सो इफ आई एम गिविंग एंटर ओवर हियर. ओके, बैच 13, या आइडेंटिफाइड का जो स्पेलिंग है वो हमारा गलत हो गया, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग अ इशू. ओके, यू कैन सी एरर आ गया, यहाँ पे लिख के आ गया एरर एट लाइन 1. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? The meaning of this is we are not doing something correctly. Okay, एंड उसने बता भी दिया, देखो आइडेंटिफाइड के नीचे स्टार लगा दिया, मीन्स एरर है अपना यहाँ पे समवेयर. ओके, तो वी जस्ट corrected that identified by. Okay, so now our user is created. Okay, all of you can do it your own, like how you will do. Whatever is your username, you will say create user, your name identified by your password. Okay, always give a simple password. There is like no need of giving the complex password over here. Okay, so that it will be easy to understand. Okay, so okay, this we have created now. Okay, so now just like system user, we have another one more user here, and that is nothing but a batch 13. Okay, so now instead of working in this system user, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग ये बैच 13 के यूजर को कनेक्ट करके उसमें काम अपना चालू कर सकते हैं. ओके, so let's connect to the user batch 13 now. Okay, okay, but it will not allow me to log in. Batch 13, it will not allow me to log in. Why? Because see, it will say oracle error. Okay, user batch 13 lacks create session privilege, log on denied. ओके, इसका मतलब क्या है कि यूजर तो क्रिएट हो गया है, बट इसको लॉगिन करने का परमिशन नहीं दिया है अभी तक हम लोगों ने. ओके, तो उसको लॉगिन करने का भी परमिशन हम लोग को देना पड़ता है. ओके, सो हाउ विल यू गिव दैट परमिशन? टू गिव दैट परमिशन, ओके, अगेन यू हैव टू गेट कनेक्टेड टू द सिस्टम यूजर, बिकॉज सिस्टम एक ऐसा यूजर है जो एक सुपर यूजर है, वो हम लोग को दूसरे यूजर्स को परमिशन वगैरह देने के लिए मदद करता है. ओके, so don't worry, this is not a part of our syllabus or this is not a part of our learning, बट एक यूजर क्रिएट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, दैट्स इट. ओके, अगर आपको नहीं आता है दैट इज फाइन, यू कैन जस्ट सिंपली लुक एट दिस स्क्रीन एंड you can create the user. Okay, so before granting we need to just okay, we are connected, we will use a grant. Okay, connect comma resource. Okay, grant connect comma resource to batch 13. इसका मतलब क्या हो गया? तो जो यूजर हम लोगों ने क्रिएट किया है बैच 13 नाम का यूजर, उसको कनेक्ट एंड कनेक्ट करने का परमिशन दे रहा है. उसके बाद रिसोर्सेज यूज करने का परमिशन, रिसोर्सेज मतलब क्या? जो डेटाबेस है उसको यूज करने का परमिशन दे रहा है. ओके, सो नाउ ग्रांट सक्सीडेड. ओके, अभी ये कनेक्ट कर सकता है. अभी अगर हम लोगों ने किया सेम क्या, कौन बैच 13, ओके, slash batch 13. Okay, now it can connect. Okay, see, it has connected now. Okay, so अभी यहाँ पे हमारे पास कोई टेबल नहीं है, कोई डेटा नहीं है. ओके, तो हम लोग को अभी ये यूजर में क्या करना है? ये जो हम लोगों ने टेबल बनाया है, ओके, इसको यहाँ पे एज इट इज क्रिएट करना है. ओके, सो इसको एज इट इज क्रिएट करने के लिए
ओके। हम लोग को कमांड्स का यूज करना पड़ेगा, जैसे कि टेबल क्रिएट करने के लिए हम हमारे पास है क्रिएट कमांड। ओके, अभी क्रिएट कमांड डायरेक्टली हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि क्रिएट एंड देन टेबल नेम। ओके, तो उसके लिए एक सिंटैक्स होता है। इफ यू कम, ओके, इनसाइड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड अ सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है? तो सिंटैक्स इज नथिंग बट वन स्ट्रक्चर। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेरी। सो वही फॉर्मेट में एक फिक्स फॉर्मेट होता है वो पर्टिकुलर कमांड का। ओके, तो उसी फॉर्मेट में हम लोग को सारी चीजें लिखनी पड़ती है, तभी वो अंडरस्टैंड कर पाता है। ओके, अदरवाइज एक कॉमा, एक सेमीकोलन, एवरीथिंग विल गिव अस द एरर। ओके, एक भी चीज अगर हम लोग मिस करते हैं उसमें तो हम लोग को एरर मिलता है। ओके, तो अभी ये जो हम लोगों ने यूजर क्रिएट किया, ये आप लोग जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेना हाउ वी डिड इट हियर। ओके, फॉर क्रिएटिंग योर यूजर, एंड उसके बाद जस्ट आपके यूजर को कनेक्ट कर लेना, तो यहाँ तक आपका काम हो जाएगा। ओके, अप टू हियर योर वर्क विल बी डन। ओके, तो डेली ये काम नहीं करना है। एक बार यूजर क्रिएट हो गया तो नेक्स्ट डे से क्या करना है, जस्ट कनेक्ट टू दिस यूजर। ओके, डोंट कनेक्ट टू सिस्टम यूजर। सिस्टम यूजर का काम हो गया। अभी इसका काम बाद में कब आएगा, जब हम लोग को कोई और यूजर क्रिएट करना है, कुछ दूसरी चीजें करनी है, इन दैट केस ये यूजर का काम आएगा, बट नाउ दिस इज नॉट नीडेड। ओके, once you re-log in, okay, you can just directly connect to the new user which we just created। okay, तो अभी समझो हम लोगों ने नए यूजर को कनेक्ट कर लिया है। ओके, अभी हम लोग का टारगेट ये है कि वॉट एवर वी हैव क्रिएटेड ओवर हियर, ओके, इन द एक्सेल, द सेम टेबल वी हैव टू क्रिएट इट इन द database। okay, so let's see now how we can make a use of commands to create the data, okay, data in the database। okay, so if you look at this, okay, we have few commands in the SQL, okay, to do the operations। okay, जैसा कि मैंने बोला टेबल क्रिएट करना है, फॉर दैट वी हैव अ क्रिएट कमांड। ओके, सिमिलरली अगर मुझे डेटा इंसर्ट करना है तो मैं एक्सेल में कैसे, हाउ आई एम इंसर्टिंग द डेटा, मैं डायरेक्टली टाइप करता हूँ। लाइक मुझे एक एक्स्ट्रा रो ऐड करनी है, आई कैन टाइप इट हियर, दिस ओके, सो दैट वे आई डोंट हैव टू वरी अबाउट द कमांड्स एंड एनीथिंग। ओके, बट जब मैं डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करूंगा तो आई मस्ट हैव टू यूज सम कमांड। ओके, and to insert the data there is a simple command, and that command is nothing but, if you look at this, which is a insert command। okay, insert command is used to insert the data. Similarly, if I want to delete something, okay, like how I deleted that, okay, I can select and click on delete button and it will get deleted. But from the database, if I want to delete something, I must have to use the command। okay, and that command is nothing but a delete। okay, that command is nothing but a delete directly। Similarly, if I want to update the existing record, I will make a use of update command। okay, so now this why these things are here, like, तो जो भी कमांड्स है, ओके, कमांड्स अगर आप देखोगे ये डैश के बाद ये सारे कमांड्स है। ओके, ये डैश के बाद सारे कमांड्स है। तो ये हम लोगों ने क्या किया है, तो जो अलग अलग कमांड्स है उनके काम के हिसाब से उनके ग्रुप्स बनाए हैं। ओके, उनके ग्रुप्स बनाए हैं। अभी ये जो फर्स्ट ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड एज अ डीडीएल ग्रुप, डीडीएल कमांड्स ग्रुप। ओके, तो कमांड्स के ग्रुप में डीडीएल इज द वेरी फर्स्ट ग्रुप। ओके, व्हाई इट इज अ डीडीएल, डीडीएल इज मेन बाई डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा की डेफिनेशन जो लिखने में काम आएंगे, जो भी कमांड्स, उनका एक ग्रुप बना दिया, डेटा डेफिनेशन। ओके, एंड देन उनको नाम दिया गया डीडीएल कमांड्स। उसमें आता है क्रिएट। ओके, ये बाकी भी आते हैं, ये हम लोग देखते हैं, बट बेसिकली क्रिएट अगर आप देखोगे तो ये किस काम के लिए आता है, तो डेटा का डेफिनेशन लिखने के लिए। ओके, तो इफ यू लुक एट दिस टेबल, ओके, इफ यू लुक एट दिस टेबल, तो जो ये टेबल क्रिएट करने वाले हैं, मतलब टेबल क्रिएट करके उसमें कॉलम्स वगैरह ऐड करने वाले हैं, दैट इज नॉट एक्चुअल डेटा। डेटा मतलब क्या है, तो डेटा ये हो गया अपना। ओके, सो जो भी हम लोग नीचे स्टोर करेंगे दैट इज कॉल्ड एज अ डेटा। दिस इज नॉट अ डेटा, दिस इज नथिंग बट अ डेफिनेशन ऑफ द डेटा, कि डेटा कैसा है उसकी यहाँ पे डेफिनेशन है।
तो ये डेफिनेशन जब हम लोग को क्रिएट, रिमूव, ऐड कुछ करनी होगी, तो उसके लिए जो कमांड्स लगने वाले हैं, ओके, दोज कमांड्स वी हैव just grouped into the DDL kind of commands. Okay, so for example, I can write it here. To make a use of this, I will like to create this in the database, I will make a use of create command. I'll make a use of create command. Okay, you can see I will highlight it. Okay, so I will use a create for this. Okay, and this, okay, create, or I will say DDL. Okay, तो DDL का मतलब क्या हो गया? ओके, ये है अपने DDL कमांड्स. ओके, तो DDL टाइप के कमांड्स यहाँ पे यूज होंगे, उसमें आता है क्रिएट एंड अदर कमांड्स जो यहाँ पे दिए गए हैं. ओके, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम. ओके, नेक्स्ट टू दैट DML. अभी ये DML कहाँ पे यूज होंगे? जहाँ पे हम लोग को डेटा पे काम करना है. इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. ओके, मैनिपुलेट मतलब इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करना. ओके, तो जो DML काइंड ऑफ कमांड्स है वो हम लोग को कहाँ पे लगेंगे? यहाँ पे डेटा में. ओके, सो आई वुड से DML, इफ आई हैव टू यूज अ DML. ओके, तो DML आई विल यूज हियर, और उसमें सिंपल कमांड होती है इंसर्ट. ओके, तो वो भी मेरी यहाँ पे यूज करूंगा मैं. ओके, ओके, तो यू कैन सी ये जो है, दिस इज अ DDL काइंड ऑफ कमांड आई हैव टू यूज टू क्रिएट दिस इन द डेटाबेस, एंड वन ऑफ द बेसिक कमांड इज अ क्रिएट टू क्रिएट द स्ट्रक्चर. ओके, अनदर ग्रुप इज DML, जो काम में आता है ये डेटा पे ऑपरेशंस करने के लिए, और उसमें एक कमांड आती है इंसर्ट, एंड अदर देन दैट ओनली टू कमांड्स आर देयर, विच इज अपडेट एंड अनदर वन इज अ डिलीट. ओके, तो इसमें है तीन कमांड्स बेसिकली. ओके, इसमें है तीन कमांड्स. ओके, DML में ये तीनों कमांड्स की मदद से आई कैन इंसर्ट द डेटा, आई कैन डिलीट द डेटा, आई कैन अपडेट द एग्जिस्टिंग डेटा. And here I have many other commands as well. Okay, but let's get started with the create command. Okay, create command say we will start. Okay, we will see how we can create this same structure inside the database. Okay, so now if you come here, okay, you can see there must be a syntax for this create command. Okay, तो जो टेबल क्रिएट करना है उसकी ये कमांड है क्रिएट, बट इसको लिखा कैसे जाएगा डेटाबेस पे? तो उसके लिए होता है सिंटैक्स. इफ यू कम डाउन हियर, ओके, यू कैन सी क्रिएट टेबल. ओके, एंड दिस इज नथिंग बट अ सिंटैक्स. ओके, तो सिंटैक्स क्या होता है? दैट इज अ नथिंग बट अ स्ट्रक्चर. ओके, स्ट्रक्चर होता है जो डेटाबेस को समझ में आएगा. वो डेटाबेस को तभी समझ में आएगा जब हम लोग उस स्ट्रक्चर में उसको रखेंगे. ओके, मतलब डेटाबेस को क्या पता है कि अगर किसी ने क्रिएट टेबल लिखा है, ओके, अगर किसी ने क्रिएट टेबल कमांड लिखी यहाँ पे, ओके, डेटाबेस पे, यहाँ पे लिखनी है अभी हमें. अगर किसी ने क्रिएट टेबल कमांड लिखी है, तो उसके आगे उसका टेबल का नाम लिखा होना चाहिए. ओके, उसके बाद ये ओपन ब्रैकेट होना चाहिए, उसके बाद ये कॉलम नेम होना चाहिए, उसके बाद ये डेटा टाइप होना चाहिए, लाइकवाइज कॉलम टू होना चाहिए, डेटा टाइप होना चाहिए. उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज होके यहाँ पे एक सेमीकोलन होना चाहिए, तब जाके डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट होगा. ओके, तो सिंटैक्स का मतलब है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट में वो क्वेरी को लिखना है. देन एंड देन ओनली you will be able to do the operations, otherwise you will get an error. Okay, you will get an error saying this is missing, that is missing, this is not correct, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड. ओके, ऐसा अगर क्रिएट टेबल का स्पेलिंग भी आपने गलत कर दिया तो भी आपको इश्यू आने वाला है. अभी फॉर एग्जांपल, इफ यू लुक एट दिस, क्रिएट टेबल इज लाइक क्रिएट एंड टेबल, ये दो कीवर्ड से ये ऐड करने हैं. ओके, उसके बाद स्टूडेंट इज द टेबल नेम. ओके, एज पर दिस इंटेक्स टेबल नेम होना चाहिए, तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ टेबल नेम. उसके बाद ये ओपन करली ब्रैकेट है, ये भी यहाँ पे दिया है. ओके, उसके बाद कॉलम नंबर. कॉलम नंबर का मतलब क्या? वोट एवर वी हैव क्रिएटेड ओवर हियर, आधार नंबर. ओके, आधार नंबर एक कॉलम नंबर, कॉलम नेम हो गया. ओके,
फर्स्ट नेम एक कॉलम नेम हो गया, ओके, लास्ट नेम एक कॉलम नेम हो गया. सिमिलरली we have to give the column name, and here it is a no is nothing but a number. Okay, student number. Data type, अभी ये data type क्या होती है, तो जो डेटा होता है that is of a multiple types. Okay, data is of a multiple types. मल्टीपल मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे टाइप्स है, डेटा एक दो तीन टाइप्स का होता है बेसिकली. टाइप मतलब कौन से टाइप का डेटा है. ओके, हाउ विल यू डिफरेंशिएट द डेटा. ओके, तो जब हम लोग नंबर्स लिखेंगे, ओके, तो सिंपली वो हो गया नंबर टाइप का डेटा. ओके, व्हेन यू विल राइट अ नंबर्स. ओके, ओके, नंबर्स, ये हो गया अपना नंबर्स. नंबर्स मतलब उसका डेटा टाइप ही क्या हो गया, कौन से टाइप का डेटा ये, इसमें हम लोग क्या स्टोर कर रहे हैं, नंबर्स ओनली. ओके, वी आर स्टोरिंग नंबर्स ओनली. ये हो गया एक डेटा टाइप, डेटा का टाइप. ओके, ये हो गया एक डेटा टाइप नंबर. ओके, सेकेंडरी, लाइक अपार्ट फ्रॉम नंबर्स हम लोग क्या स्टोर करते हैं डेटाबेस में, तो हम लोग ये स्ट्रिंग स्टोर करते हैं, स्ट्रिंग्स. ओके, तो जब हम लोग इसको स्टोर करेंगे तो दिस इज काइंड ऑफ अ स्ट्रिंग काइंड ऑफ डेटा. ओके, दिस इज अ स्ट्रिंग काइंड ऑफ डेटा. स्ट्रिंग्स में क्या क्या होगा, तो ये ऐसे नाम्स होंगे. ओके, वट एवर द नेम्स वी आर राइटिंग, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रिंग्स. ओके, कुछ ऐसा डेटा होगा जो कि मिक्स ऑफ डेटा होगा. ओके, मिक्स ऑफ नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स. ओके, अभी ये क्या है, मतलब कुछ नंबर कुछ डिजिट. ओके, कुछ नंबर्स कुछ स्ट्रिंग्स. ओके, कुछ कैरेक्टर्स. ओके, सिमिलरली सारे नंबर, सिमिलरली सारे स्ट्रिंग्स. ओके, तो ये एक मिक्स ऑफ डेटा हो गया. इसको भी क्या कंसिडर किया जाता है, स्ट्रिंग ही कंसिडर किया जाता है. ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इफ यू गेट डेटा लाइक दिस. ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्ट्रिंग काइंड ऑफ डेटा. ओके, तो यहाँ पे जो भी नंबर है, ओके, समझो मैंने पूरा नंबर ही लिख दिया तो भी उसको नंबर नहीं कंसिडर किया जाएगा, उसको स्ट्रिंग कंसिडर किया जाएगा. ओके, so this is again a second type of data, I would say. Okay, it's not another data type with mix of strings and numbers. Okay, data types दो ही types के हैं majorly, numbers या तो strings. Okay, उसके अलावा data type है that is nothing but a date. Okay, तो जब मुझे कोई डेट स्टोर करनी होती है डेटाबेस में, तो आई हैव टू यूज डेट एज अ डेटा टाइप. ओके, आई हैव टू यूज अ डेट एज अ डेटा टाइप. ओके, अभी नंबर्स स्ट्रिंग्स एंड डेट. ओके, तो जब मुझे नंबर स्टोर करने होंगे तो अलग अलग डेटाबेस में अलग अलग फॉर्मेट होता है. ओके, जब मैं ओरेकल में स्टोर करूंगा तो आई विल यूज अ नंबर्स ओनली एज अ डेटा टाइप. यू कैन सी एनो में मुझे नंबर स्टोर करने हैं, तो मैंने बता दिया कि भाई ये टेबल का ये कॉलम का डेटा टाइप आई आई नीड एज अ नंबर. ओके, सिमिलरली हियर यू कैन सी कॉलम टू मेरा बन गया है नेम यहाँ पे, and that I have to use a data type as a varchar. Varchar is nothing but string in the Oracle. Okay, varchar is nothing but a string in the Oracle. So if you look at this, okay, here I said like strings are like this. Okay, तो यही हम लोग को स्टोर करना है, बट Oracle में स्ट्रिंग डेटा टाइप को स्ट्रिंग नहीं बोला जाता, उसको बोला जाता है varchar. उसको बोला जाता है varchar. तो जब भी मुझे स्ट्रिंग स्टोर करने होंगे, आई विल यूज अ varchar एज अ डेटा टाइप. ओके, आई विल यूज अ varchar एज अ डेटा टाइप. ओके, एंड ये जो ब्रैकेट्स में लिखा है ये इनका साइज है. ओके, लाइक नंबर्स अगर स्टोर करने हैं तो मैक्सिमम कितने डिजिट्स मुझे स्टोर करने हैं. ओके, तो मैंने अगर दो दे दिया, तो इफ यू लुक एट दिस, तो यहाँ पे जो मैंने इतने नंबर्स दिए, आई कैन नॉट यूज दिस, आई मस्ट हैव टू गिव लाइक दिस 12, 13, 40, not 3. Okay, this is not valid because this this is having 3 digits, and हम लोगों ने इसका साइज समझो दे के रखा है जस्ट 2 digits. ओके, तो ये दो ही डिजिट स्टोर करेगा, ये बाकी वाले जो है वो इनवैलिड रहेंगे. ओके, बाकी नंबर्स हम लोग इसमें स्टोर नहीं कर सकते. Apart from that, if you come to the name, for that as well we have a size. It means that 10 characters maximum we can store, like ABCD up to 10 only we can store. Okay, and similarly third column they have taken here
दैट इज नथिंग बट अ मार्क्स कॉलम, ओके, और उसका भी डेटा टाइप है numbers, okay. So similarly, like how they have created one table here, we also have to create the same, okay, in our database, okay. So now let's see how we can do this, okay. So if you look at this, okay, तो ये सिंटेक्स की तरफ हम लोग को देख के क्या करना है, तो एक सिंपल हम लोग को अपना टेबल बना लेना है, okay. So what is our table here, you can see it here, okay. So I will paste our syntax here, okay, create table, and यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, okay. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके, फॉर एग्जांपल भी दिया है, तो मैंने यहाँ पे इसलिए लिया कि हम लोग को देखना है, ओके, हम लोग को इसको देख के ही अपना भी टेबल बनाना है, ओके. सो आई विल पेस्ट इट हियर एंड यू कैन जस्ट लुक एट दिस, ओके. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख के मुझे बताइए कि हाउ आई कैन do this, okay. Let me just make it in color, ओके. तो ये अपना एग्जांपल है, ये अपना ये है, ओके. ये सिंटैक्स है, तो सिंटैक्स को देख के, एग्जांपल को देख के हम लोग को ये टेबल अभी अपने डेटाबेस में बनाना है, ओके. सो कैन समवन from you, one of you tell me like what I have to write it here based on the syntax and example. क्रिएट टेबल तो मैंने लिख दिया है, उसके आगे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? हेलो. Exactly, table name and which is a village for us. What has to be next? Definitely the open bracket we have to see. Yeah, okay. Post that. Yes, definitely. Yeah, first column name which is a Aadhaar underscore number. Okay. Next to that, it's data type. Okay, data type will keep as a number because we are going to store the number. Okay, and then size of it, okay. So other number size is something around 16 digits, so we will keep a 16 digits, okay. Post that, uh, comma, right? Okay, next. Yes, exactly, first underscore name, and then it's a data type, right, which is a varchar now here, okay, as we discussed, okay. And its size, what should be the size? 10 we can keep, okay. And next, again last underscore name, okay. And next to that, it's again it's data type again we will keep it as a varchar, okay. And its size also we will keep it as a 10 only, okay. So again comma, and what next? Mobile number. Now what should be the data type for mobile number again? Yeah, definitely number only, because we are going to now store numbers only, okay. And what should be the size? 10, because 10 is the like maximum number of digits we will have in the mobile number, okay. Also post this, what we have to do as per the syntax, if you look at this, ये ब्रैकेट हम लोग को क्लोज करना है, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद सेमी कोलन भी देना है, ओके. सो ये जो ब्रैकेट हम लोगों ने क्लोज किया, ये इसका क्लोज किया, ओके.
एंड एक और ब्रैकेट क्लोज करके उसको सेमीकोलन देना है। तो दिस वे वी विल हैव वन टेबल क्रिएटेड। ओके, तो हमारा विलेज टेबल यहाँ पे बन गया। ओके, सो अगर मुझे देखना है कि ये टेबल कैसे बना है, तो आई हैव अ desc कमांड, ओके, टू डिस्क्राइब दिस टेबल। ओके, so if you type the DESC and table name, it will show me what all the columns I have created in my table. So you can say other number is the one which is having 16 digit as a data number as a data type, and 16 digits as a size of that column. Okay, first name, last name, mobile number, these many things we have. Okay, so ऐसे हम लोगों ने क्या कर दिया, एक टेबल का स्ट्रक्चर बना दिया। मतलब हमारा DDL का जो क्रिएट कमांड था उसका सक्सेसफुली हम लोगों ने यूज कर लिया। ओके, सिमिलरली अगर मुझे ऐसे मल्टीपल टेबल्स बनाने हैं, तो आई मस्ट हैव टू यूज द सेम सिंटैक्स। मैं इसमें से एक भी चीज गड़बड़ी करूंगा, इट विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। सपोज फॉर एग्जांपल सी आई एम जस्ट रिमूविंग वन थिंग हियर, ओके, इट विल गिव मी द एरर। ओके, यू कैन सी मिसिंग राइट पैरेंथेसिस, ये बोल रहा है। मतलब एक पैरेंथेसिस है, जो ब्रैकेट है उसको पैरेंथेसिस ये बोलता है, तो दैट पैरेंथेसिस इज बेसिकली मिसिंग। ओके, इसके लिए ये हम लोग को एरर दे रहा है। ओके, तो ये चीजें याद रखनी है while executing the commands। ओके, ओके, तो दिस इज लाइक वी हैव क्रिएटेड द स्ट्रक्चर नाउ। ओके, बट हम लोगों ने कोई डेटा इंसर्ट किया है क्या? ये जो डेटा है ये हम लोगों ने इंसर्ट किया है क्या? नहीं। सो वी हैव टू insert the data here। Okay, so what we have to do, we have to do it like this: insert into, okay, table name village। Okay, as per the syntax, this is a syntax for insert command। Okay, again we will go with the syntax only। Okay, we will not go like this। Okay, so table हम लोगों ने create कर लिया है। Okay, तो यहाँ पे कैसा है, अभी एक्सेल में और डेटाबेस में आप डिफरेंस देख सकते हैं। एक्सेल में मैंने सीधा टाइप करके मेरा टेबल बना दिया, और मुझे देखना है तो मैं सीधा आंखों से देख सकता हूँ। बट हियर एम आई एबल टू सी द टेबल? मुझे टेबल दिख रहा है क्या? डायरेक्टली नहीं दिख रहा है। मुझे देखना होगा तो क्या करना पड़ रहा है, आई आई हैव टू टाइप द कमांड लाइक डिस्क्राइब विलेज और समथिंग लाइक दैट। तो मुझे पता चल रहा है कि हाँ भाई मेरा टेबल है, इस नाम से है। ओके, बट कब? जब मैं उसको कमांड दे रहा हूँ। Okay, so that is the very first difference you can see, okay, between the database and between the oracle। Okay, तो post this you can see। okay, अभी हम लोग को क्या करना है, तो ये डेटा वही वही टेबल में, जो टेबल हम लोगों ने अभी क्रिएट किया डेटाबेस में, उसमें ये डेटा को हम लोग को क्या करना है, तो इंसर्ट करना है। ओके, वी कैन सिंपली मेक अ यूज ऑफ इंसर्ट कमांड। So let's see what is the insert command here। Okay, so after creation of the table, here also you can see they have mentioned the insert command। Okay, why is that? To insert the data in the table we just created। जो टेबल हम लोगों ने अभी क्रिएट किया है, तो उसमें डेटा इंसर्ट करने का काम अभी हम लोग को करना है। ओके, एंड इफ यू कम हियर, insert command is a part of a data manipulation language। okay, तो DDL में पता चल गया, जब हम लोग को डेफिनेशन बनानी होगी डेटा की, जैसा कि टेबल क्रिएट करना है, कॉलम्स को, कॉलम्स के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, then I will make a use of one of these commands। and if I want to do some operation on the data, then I will make a use of these below commands। okay, I will make a use of these below commands। and फिर बाद में ये commands भी हम लोग यूज करने वाले हैं। so one by one we will see। okay, कि क्या ये ग्रुप है, why this group is separate, why this is separate। okay, and why this is separate। अभी तक तो ये दोनों ग्रुप्स हम लोग को पता चल गए। ओके, तो दोनों में से एक है डेफिनेशन के लिए, एक है डेटा को मॉडिफाई करने के लिए। ओके, so let's see now how we can insert the data in the table we just created। okay, so for insertion what we have is, we have two methods basically। one is a very simple method where we will directly give the values, okay, and other is a address method। okay, so first of all let's see how we can give the values and simply we can insert the data। okay, so for inserting the data using the value method, again we will have in syntax। okay, for each and every command you will have syntax। okay, और ये जो syntax है ये आप लोग को याद रखना ही है। okay, कि अगर create command है तो उसका syntax क्या है।
ओके। तो सिंटैक्स याद रखना बहुत ज़रूरी है, वो ऐसा कोई नहीं है कि डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंडिंग के लिए या फिर याद रखने के लिए। जब आप लोग डेली इस पे काम करते करोगे 1 2 4 बार तो आपको वो याद हो जाएगा, ओके। बट याद करना है ये, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। तो नेक्स्ट टू दैट सिंटैक्स है अपना इंसर्ट का, ओके। तो सिमिलर टू दिस वी हैव सिंटैक्स फॉर इंसर्ट एज वेल। एंड अगर मुझे कोई डेटा इंसर्ट करना है तो while inserting the data I again must have to use the same structure what is there in the insert command, okay। तो insert command के लिए डेटा insert करने के लिए we have syntax like insert keyword into keyword, okay। for example यहाँ पे आप देख सकते हैं insert into लिखा है, उसके आगे सिमिलरली अगेन टेबल नेम, ओके। जैसा हम लोगों ने यहाँ पे देखा टेबल नेम हम लोगों ने स्टूडेंट, वो लोगों ने स्टूडेंट दिया है, हम लोगों ने विलेज दिया है, ओके। ओके। सिमिलरली यहाँ पे जब हम लोग डेटा इंसर्ट कर रहे हैं हम लोग को अगेन एक टेबल नेम देना है, ओके। उन्होंने भी टेबल नेम दिया है द सेम टेबल विच दे जस्ट क्रिएटेड। तो हम लोग भी क्या करेंगे अपने टेबल का नाम देंगे यहाँ पे। उसके बाद ये वैल्यूज कीवर्ड है ये यहाँ पे भी एग्जांपल में दिया है यू कैन सी, ओके। एंड उसके बाद अगेन ओपन द ब्रैकेट, ओके। एंड आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट जो हमारे कॉलम्स है उनकी वैल्यूज लिखनी है, ओके। वैल्यूज, वैल्यू का मतलब क्या होता है, तो इफ यू कम हियर इन द एक्सेल तो ये जो है ये बेसिकली वैल्यूज है, ओके। ये वैल्यूज है, ओके। अगर मैं बोलूँगा आधार नंबर का रोहित के लिए वैल्यू क्या है तो इट्स 101, ओके। फर्स्ट नेम का रोहित के लिए वैल्यू क्या है तो फर्स्ट नेम का वैल्यू है रोहित, ओके। लास्ट नेम का वैल्यू है जादव, ओके। मोबाइल नंबर है 103 ओके। तो मोबाइल नंबर का वैल्यू क्या हो गया 123, ओके। नाउ सिमिलर टू दिस वी हैव टू अगेन मेक अ यूज ऑफ insert command and we have to insert the data, okay। so now let's see how we can insert the data, okay। so let's take again a syntax from here, okay, and one of the example from here, okay, to our file and see how we can do that। नई कॉपी क्यों हो रहा है ये। ओके ऐसे होगा, ओके। तो ओके तो ये है सिंटैक्स उसका, ओके। तो इसको मैं जस्ट रैप करता हूँ, ओके। एंड ये इसका है एग्जांपल डेटा इंसर्ट करने का, ओके। सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल एज वेल, ओके। ओके तो सिंपल है उसको, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके। सो अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स एंड अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल अभी हम लोग को हमारा डेटा इंसर्ट करना है हमारे टेबल में विच इज अ विलेज, ओके। जो हम लोगों ने अभी जस्ट क्रिएट किया है। तो can someone from again one of you other than the one who just talked tell me how I can insert the data? Yeah, you are. Mhm. Insert into village, yes, yes, definitely values. Then a Aadhaar underscore number. Okay. Mhm. No, if you look at the example, see.
we have to give the value directly. Okay, other number is not coming. Okay, so we just have to directly give the value, not the other number. Okay, so what is the value now for first record? 101 exactly. Okay, next to that, what I have to do as per the syntax? Exactly, exactly. And how will you do? By looking at the example, you can see definitely comma in the single quotes. Okay, now just keep in mind, whenever we have to insert the strings, we must have to include them within the quotes. Okay, within the quotes only. For numbers it is fine, but for strings we must have to give the strings. Okay, so if you look at this, okay, again Jadhav is a string, so I must have to give it in the single quotes. Okay, so next value after the surname, last name is the mobile number. I can directly give it that. Okay, and just close the bracket. This open and close bracket you will find it at multiple places. Okay, and ये आप लोग को याद रखना है, जितने ओपन ब्रैकेट्स आप लोग बनाओगे उतने ही क्लोज ब्रैकेट्स सब जगह पे बनानी है एसक्यूएल पे, जहाँ पे भी काम करोगे ये एक चीज याद रखनी है। ओके, एंड ये सेमीकोलन इसके लिए होता है कि मेरा कमांड लिखना अभी खत्म हो गया एंड हियर आई जस्ट वांट टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन। ओके, तो जब मैं इंसर्ट करूंगा यहाँ से इंसर्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, यहाँ पे आके उसको पता चलेगा कि दिस इज द एंड ऑफ द कमांड। ओके, सो once I type hit enter, okay, it will say one row created। ओके, अभी अपने डेटाबेस में ये जो रो थी उसमें से एक रो अपनी बन गई। एंड जब मुझे अगर देखना होगा कि वो बनी कि नहीं, फॉर दैट अगेन आई हैव टू यूज अ कमांड। ओके, क्योंकि अभी यहाँ पे देख के मुझे पता चल रहा है मेरे इसमें इतने रोज हैं, बट ये टेबल में आई विल नेवर गेट टू नो what all the rows I have stored। So how I can do that? I must have to use a command again। Okay, so which is that command? If you come here, there is a command to select the data। Okay, data retrieval command। Okay, you can see data retrieval language। Okay, DRL। DRL का मतलब क्या है? जो डेटा हम लोगों ने इंसर्ट किया है उसको देखने के लिए एक कमांड है, उसको देखने के लिए ये सिलेक्ट कमांड है। तो इसका भी बेसिकली एक सिंटैक्स है। ओके, सिंपल सिंटैक्स है, जो भी डेटा हम लोग को देखना होगा। ओके, तो आई कैन डायरेक्टली टेल यू। ओके, वी हैव अ सिंटैक्स फॉर दैट एज वेल बिलो। ओके, सी यू कैन सी हियर। ओके, सिलेक्टिंग द डेटा, जो डेटा हम लोगों ने इंसर्ट किया है उसको अगर देखना है तो उसका सिंटैक्स ऐसे है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एंड देन टेबल नेम, सिंपल है। ओके, हियर स्टार इंडिकेट्स ऑल द कॉलम्स। स्टार का मतलब है सारे कॉलम्स, समझे? ओके, अगर मैं स्टार दे रहा हूँ इसका मतलब ये है कि मेरे टेबल में मैंने जितने भी ये कॉलम्स क्रिएट किए हैं उन सब की वैल्यूज दे दो। अगर सबको नहीं, सबकी नहीं चाहिए तो आई कैन सिंपली मेंशन द कॉलम नेम्स, कॉलम वन, कॉलम टू। ओके, अगर मुझे दो ही कॉलम्स की वैल्यू चाहिए तो मैं दो कॉलम्स मेंशन करूंगा, और स्टार की जगह पे मुझे मतलब सारे कॉलम्स की जगह पे मुझे उतने ही कॉलम्स मिलेंगे जितने मैंने सिलेक्ट के कमांड में लिखे हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल हाउ आई कैन राइट इट हियर? अभी अपना टेबल नेम हम लोग को पता है, व्हाट इज दैट? विलेज। सो इफ आई वांट टू सी द डेटा, व्हाट आई कैन डू इज, ओके, आई कैन टाइप द कमांड select star from and village, simple। Okay, and I'll get to know if my record is inserted or not। You can see here our record is got inserted। Okay, and which is a very similar kind of record what is we have inserted here in the excel। Okay, got it? Got it everyone? Okay, so you can see from here database is nothing but storing the data। okay, तो जहाँ जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने विलेज का एक टेबल बना दिया और उसमें एक रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया। ओके, सिमिलरली दूसरे रिकॉर्ड के लिए अगेन हम लोग को ये इंसर्ट इनटू कमांड लिखनी है यहाँ पे। ओके, इंसर्ट इनटू विलेज। ओके, एंड देन वैल्यूज। ओके, एंड देन उसकी वैल्यूज। ओके, अभी यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे इस पे काम कर रहे हैं कमांड लाइन इंटरफेस पे। ओके, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कि जो कमांड्स हम लोगों ने ऊपर एग्जीक्यूट किए हैं उनको अगर देखना है तो अपने लैपटॉप में
या अपने कीबोर्ड पे जो एरो बटन्स होते हैं, 4 एरो बटन्स होते हैं, राइट? तो चारों में से जो अपर एरो है, इफ यू click on that, you will see the first command which we just executed before this. Okay, if you again click on the same arrow, you will see उसके पहले हम लोगों ने जो कमांड एग्जीक्यूट की थी वो दिखेगी. ओके, अगेन अगर आप लोग सेम थिंग करते हैं तो उसके पहले जो की थी वो दिखेगी, डिस्क्राइब विलेज. ओके, ऐसे ऊपर तक जितने भी कमांड हम लोगों ने एग्जीक्यूट किए वो सारे देख सकते हैं. उसके बाद अगर नीचे वाले कमांड देखने हैं, समझो यहाँ पे आके पता चलेगा नहीं ये नहीं चाहिए थी, नीचे वाली चाहिए, तो जस्ट क्लिक ऑन डाउन एरो. ओके, मतलब अप एरो एंड डाउन एरो आपको प्रीवियस के कमांड्स देगा. मतलब इंसर्ट इनटू वापस से लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, जस्ट क्लिक ऑन अपर एरो, गो टू दैट कमांड एंड जस्ट एडिट दिस वैल्यूज. ओके, तो इसको एडिट कैसे करेंगे? 102 रोहित की जगह पे रोमा. ओके, नेक्स्ट टू दैट more. Okay, and next to that 456. Okay, and just hit enter. Okay, one more row got inserted. अभी अगर इसमें दो रोज आई कि नहीं वो कैसे देखेंगे? तो अगेन अपनी कमांड सिलेक्ट कमांड. ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम विलेज, वो भी मैं टाइप नहीं करूंगा, जस्ट अपर एरो से मुझे वो मिल जाएगी. ओके, जस्ट हिट एंटर. गॉट इट? 101 102. ओके, एंड ये दो रिकॉर्ड्स अभी अपने इंसर्ट हो गए. सिमिलरली हम लोग मल्टीपल रिकॉर्ड्स, इसके नीचे जितने भी रिकॉर्ड्स है सारे रिकॉर्ड्स हम लोग डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हैं. ओके, तो ये जो चीज़ें हैं डेटाबेस के रिलेटेड हम लोग को अंडरस्टैंड करनी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, क्या डेटाबेस होता है, क्या उसके कमांड्स होते हैं. ओके, तो ये एक ओरेकल डेटाबेस है जिसमें हम लोग डेटा स्टोर कर रहे हैं. ओके, ओरेकल हम लोग को कभी नहीं दिखेगा एंड वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. ओके, हम लोग को एसक्यूएल जरूरी है. तो एसक्यूएल मतलब क्या है? तो ये जो हम लोग यहाँ पे कमांड्स लिख रहे हैं ना, इंसर्ट, क्रिएट, ओके, डिस्क्राइब, ये सारे क्या है? तो एसक्यूएल के कमांड्स है. ओके, एसक्यूएल के कमांड्स, एसक्यूएल की लैंग्वेज है ये. तो एक एक लाइन ये. ओके, तो यही हम लोग को सीखना है. ओके, इसमें बहुत सारी चीजें आगे हैं, नॉट ओनली इंसर्शन ऑफ द डेटा और क्रिएशन ऑफ द टेबल. ओके, but multiple things will come step by step. Okay, next to this. Okay, तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि कैसे टेबल जो एक्सेल में क्रिएट किया है, सिमिलर टू दैट वी हैव टू क्रिएट इट इन द डेटाबेस. ओके, एंड सिमिलरली हाउ वी आर इंसर्टिंग द डेटा हियर, वी कैन इंसर्ट द डेटा हियर. ओके, अभी यहाँ पे स्टोर करने के बेनिफिट्स क्या है? तो डेफिनेटली मुझे डेटा दिखता नहीं है. ओके, मुझे डेटा दिखता नहीं है, बट दैट इज नॉट अ ड्रॉबैक. ओके, वो कोई ड्रॉबैक नहीं है. जैसे कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक्सेल में आई कैन नॉट स्टोर द डेटा ऑफ होल तहसील, होल डिस्ट्रिक्ट, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट. ओके, तो जब मैं वो स्टोर करूंगा तो ये पूरा हैंग होने लगेगा, मुझे डेटा नहीं मिलेगा. ओके, आगे चल के तो स्टेट लेवल पे तो मैं डेटा ही नहीं इंसर्ट कर सकता. बट ये इतना पावरफुल टूल है कि इसमें आप कितने भी करोड़ रिकॉर्ड्स रहने दो, आप अगर लिखोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम विलेज, ओके, या फिर डिस्ट्रिक्ट, ओके, तो ये आप लोग को कुछ सेकंड्स में पूरे डिस्ट्रिक्ट का डेटा लाके यहाँ पे दिखाएगा. ओके, कुछ सेकंड्स में पूरा डेटा दिखाएगा. ओके, so that is the power of database, and that's why the peoples are using database here. Okay, instead of storing the data in the applications like this. Okay, clear everyone? Mm-hmm. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. 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 No, there is a no shortcut. Actually, we must have to hit this insert command 10 times. But there is another option. Okay, but that too is not like you just typed all the names all together and it has inserted. But it's little bit shortcut than this. like जो यहाँ पे insert into हम लोग बार बार लिख रहे हैं वो नहीं लिखना पड़ता.
बट वैल्यूज हम लोग को सारे वन बाय वन ही देने पड़ते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि जैसे अभी समझो मैंने यहाँ पे लिखा है तो आई जस्ट कॉपीड इट फ्रॉम हियर, एंड एक्सेल में मैं जस्ट कंट्रोल सी करूंगा और कहीं पे भी जाके पेस्ट करूंगा तो वो पेस्ट हो जाएगा। ओके, बट दैट ऑप्शन लाइक फ्रॉम हियर टू हियर इट इज नॉट देयर। ओके, बट अगर मेरे यहाँ पे टेबल्स है, ओके, यहाँ पे कॉलम्स है और मुझे ये सेम रोज किसी और टेबल में कॉपी पेस्ट कराने हैं तो दैट आई कैन डू, बट फॉर दैट आई हैव टू यूज अ कमांड। Okay, I have to use a command. I cannot do it like control C and control V. Okay, yeah. Also, insertion of like multiple records at once is not available in any of the database as of now. Okay, yeah. Anything else from anyone like this? Any kind of doubt you have, you can ask me. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. No, नो नो नो, नंबर विल जस्ट स्टोर द नंबर्स। नंबर में हम लोग स्ट्रिंग नहीं स्टोर कर सकते, जैसा कि नाम स्टोर नहीं कर सकते। Not a single character we can store in the number. But if you look at this first name and last name, ये हम लोगों ने strings दिए हैं। तो string का मतलब होता है not only characters A to Z, but numbers also can be treated as a string. Okay, तो इसमें हम लोग numbers भी store कर सकते हैं, but इसमें strings नहीं कर सकते। Okay, that too only if column data type is a varchar। समझे? अगर मेरा कॉलम का डेटा टाइप varchar है तो यहाँ पे रोमा की जगह पे मैं नंबर भी लिख रहा हूँ तो मुझे वो कोट्स में ही देना पड़ेगा। समझे? मैं विदाउट कोट्स varchar में डेटा नहीं इंसर्ट कर सकता। ओके, और हाँ डेफिनेटली कॉलम के डेटा टाइप पे। और अभी नंबर में और इसमें डिफरेंस क्या होगा, तो लेट मी टेल यू सिंपली। ओके, समझो मैं एडिशन कर रहा हूँ। ओके, मेरा एक नंबर डेटा टाइप है, मेरा एक varchar डेटा टाइप है। ओके, अभी नंबर में मेरे पास दो नंबर है 10 एंड 10। वर्कर्स में मेरे पास दो स्ट्रिंग्स है ABC एंड ABC। अभी ये दोनों का मैंने एडिशन करा दिया 10 एंड 10 का, तो नंबर में मुझे आउटपुट क्या मिलेगा 20। सिमिलरली इफ आई एम डूइंग एडिशन ऑफ दिस व्हाट आई विल गेट इज अ ABC ABC। ओके, क्योंकि ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ओके, अभी जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि इसमें हम लोग नंबर्स भी स्टोर कर सकते हैं। तो अगर मैंने 10 और 10 स्टोर कर दिया, ओके, तो अगर मैं ये दोनों का एडिशन करूंगा तो मुझे 20 नहीं मिलेगा, आई विल नॉट गेट 20। व्हाट आई विल गेट इज एज अ 10 10 10 10 लाइक दिस। ओके, क्योंकि ये क्या कंसिडर कर रहा है अभी, इसको स्ट्रिंग्स कंसिडर कर। ओके, सो ये डिफरेंस है दोनों में। ओके, जब आप लोग नंबर को varchar में स्टोर करोगे तो मतलब varchar में आई कैन स्टोर द नंबर्स, बट हियर आई कैनॉट स्टोर द स्ट्रिंग्स, आई कैनॉट स्टोर द ABC हियर। ओके, you guys can try out that। okay, yeah, anything else from anyone? Mhm. Yeah, it is. But if you here we just have to give the comma and other values. That way it is possible. That way it is possible. Yes. Second. Mhm. Yes, definitely. Yes, it will insert. Mhm. Not as of now. As of now, whatever we did is the only assignment for you. Because if you look at this, this is just a kind of practical only. Okay. So once we did it here, you have to again do it for your practice. Okay, post that you can like create another table, you can insert few more records. Okay, you can try inserting and all. This is a very basic things and we are going very slower here. Why? Because
most of the peoples will not have any understanding of the databases, languages, syntaxes. Okay, that's why we are going this way. And even if you are from the IT background, okay, but if you haven't worked on the SQL, तो आप लोग भूल जाते हो. ओके, अभी तक आपको मतलब कॉलेज के टाइम पे हुआ होगा, या फिर कहीं पे छोटा मोटा आपने थोड़ा बहुत काम किया होगा, तो आप भूल जाते हैं. तो उसके लिए ये रिवीजन के लिए भी हम लोग क्या है, तो स्लोली जाएंगे, वन बाय वन चीज देखेंगे, ताकि सबके लिए वो सही रहेगा. ओके, फॉर ओनली एसक्यूएल एंड फॉर इनिशियल फ्यू सेशंस. वंस यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, ओके, आपको सब कुछ समझ में आ गया, उसके बाद वाले जो सेशंस होंगे वो नॉर्मल वाले सेशंस होंगे. जैसे कि इतना बारीकी से हम लोग को देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब तक आपको सिंटैक्सेस, आपको कमांड्स वगैरह इसका थोड़ा सा आदत हो जाएगी. ओके, या ओके देन, एनीथिंग एल्स फ्रॉम एनीवन? यहाँ पे कॉल में जितने हैं सबने अपना ईमेल आईडी शेयर किया है ग्रुप में, सबको कल का वीडियो दिख रहा है या किसी को नहीं दिख रहा है? Okay, if not visible, you can just simply give me your mail IDs. Okay, we'll add it. Okay, okay then I guess we are clear here. Okay, with all the doubts. Okay, you can again always ping in the group if you have anything. Okay, we can solve it there. Okay, okay then chalo. Thank you so much all of you for joining to